میں نے جو اسٹڈی کیا ہمارے PC4 ہے. میں نے گلگت بلتستان کے اندر بے روزگاری کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. میں نے اس گلگت بلتستان کے اندر دیکھو بلتستان جیسا بہت بڑا ریجن کے اندر بجلی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے. ڈسٹرکٹ گلگت جو کیپٹل ہے گلگت بلتستان کی, اس کے اندر 2 گھنٹے بجلی. اب آ کر لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم بجلی دے دیں گے. اب کوئی بجلی نہیں دے سکتا ہے. اب آ کے اس کا 5 سال پورا گزرے گا, بجلی گھر بنوائے گا, اس کا رن ہونے تک 5 سال پورا گزر جائے گا. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ بھائی ان وفاقی جماعتوں سے میرا گلہ بھی ہے اور ان کے سپورٹروں کو میرا یہ پیغام بھی ہے. پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت ہے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب حکومت والے اگر چاہتے تو سردیوں میں ہمارے لیے جو 8 میگا واٹ, اس سے پریویس دیکھو 3 سال 4 سال 5 سال پہلے کیا ہوتا تھا یہاں تھرمل, وہ جو بجلی گھر تھے ہمارے جنریٹر تھے وہاں, ان کے لیے تیل آتا تھا نا. اس دفعہ تیل کیوں نہیں دیا؟ یہ 2-3 سالوں سے. میں نون لیگ کے ان محترم ورکروں سے میرا سوال ہے کہ بھائی اپنے قائدین سے پوچھو, 11 ارب دے کے تمہارا وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو مسز ہماری محترمہ اپنے لیے جہاز خرید سکتی ہے, اس 11 ارب میں سے اگر تمہارے لیے 1 ارب روپے بھی دیتی تو سردیوں میں یہاں تجھے بجلی 6 گھنٹے ملتی. پولیٹیکلی اس پروسیس کے اندر دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر پورے پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی سے وہاں پہ جو ریئل ورکر ہوتا ہے کہ اس کو آگے موقع نہیں دیا جاتا ہے. پیراشوٹرز آگے کسی بھی پارٹی کے اندر اپنے اقتدار تک, اسمبلی تک پہنچنے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, پولیٹیکل سسٹم میں کیا ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اس پہ؟ حقیقت میں بتاؤں نا تو پورے پاکستان کے اندر پولیٹیکل نظام گندہ ہے, اس کو نہیں چھپاؤں گا میں. ہر جماعت کے اندر ٹکٹ لانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں, صرف ٹکٹ کے لیے پیسے مانگتے ہیں. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں مانگتے ہیں تو آن ایئر شو میں کسی ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں نے PTI جوائن کیا تو اس وقت کا جو کانا ڈویژن کے ہمارے منسٹر تھے اس نے مجھ سے 50 لاکھ روپے مانگا ٹکٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہی ستم ظریفی ہے نا, یہی لوگ ہیں کہ بھائی ورکر وہ ریئل کارکن وہ مایوس ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری ITP کے اندر ایسا نہیں ہے. جس نے گراؤنڈ میں کامیاب, دیکھو 30 سالوں سے میں اس جماعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں تو الحمدللہ. اب میرے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے, میرے ساتھ 2 اور امیدوار بھی ہے, وہ ابھی وہ نہیں آئے ہیں تو, لیکن میرا اندر وہ جذبہ ہے. اگر فرض کرو میری جماعت ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر ٹکٹ اگر ان کو کنفرم کرتی ہے تو اس وقت میرا اندر جذبہ ہے کہ میں ان کے ساتھ سپورٹ کروں گا. لیکن دوسری جماعتوں میں ایسا نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر ٹکٹ کے لیے 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو 2 نے بغاوت کیا ہے گلگت بلتستان کے اندر, کیونکہ وہ نظریاتی نہیں ہے. اور گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو, یہاں ہمارے پاس آئینی پروسیس نہیں ہے, سرزمین بے آئین ہے. یہاں آئین پاکستان یہاں لاگو نہیں ہے, لیکن الحاق پاکستان ہمارے بڑوں نے کیا تو ہم لوگوں نے کیا کیا, تو اس سسٹم کے اندر بس اسی کبھی رول 2018 لایا, 2000 بزنس رول 2009 لایا, ایک آرڈر پہ ہم چل رہے ہیں اس وقت یہاں. لیکن گلگت بلتستان کے اندر کیا نظریاتی وہ جماعت ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے. تم پاکستان ہمارے پرائم منسٹر کو آپ ووٹ ہی نہیں پول کر سکتے ہو. تو پھر یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جیالے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے ورکر ہیں فلان پاکستان ہے. بے شک آپ جیالے ہوں گے, ورکر ہوں گے, لیکن وہ مقام تمہارا نہیں ہے جو سندھ کا ورکر کا ہے, وہ مقام تمہارا نہیں ہے جو پنجاب کا ہے. تو لہٰذا کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری جماعت کے اندر یہ نہیں ہے کہ ٹکٹ ہولڈر سے پیسے کھا کے یا نظریاتی جو کارکن ہوتا ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگانا نہیں. اب فرض کرو ہماری جماعت میں بھی لوگ آتے ہیں, وہ کیوں آتے ہیں؟ اس وقت نظام میں تبدیلی آئی گیا, ورلڈ آرڈر چینج ہوا اس وقت دنیا میں. امریکہ جو تھا نا وہ ایک ورلڈ آرڈر تھا, اس کی ایک اپنی سپرمیسی تھی. اب ایران وار کے بعد اس کی ورلڈ آرڈر ختم. اب سپرمیسی جو جا رہی ہے میری نظر کے مطابق چائنا کی طرف جا رہی ہے, جو سپر پاور تھا پہلے. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں اسپین, اس کے بعد پھر برطانیہ, پھر اس کے بعد امریکہ کے پاس چلا گیا, یہ اب ادھر گیا. دیکھتے ہی لوگ اس میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو ابھی یہاں ایک تبدیلی آ گیا کیونکہ ہمارے رہبر نے ہمیں وہ روح پھونکی, ہمارے اندر ہمارے رہبر شہید نے ہمارے اندر وہ جرات دے دیا کہ بھائی آپ ایک ویژن لے کے ظالم کے خلاف
इंसानियत और मजलूम की दाद रसी के लिए आप मैदान में आ जाओ। अभी लोग आ रहे हैं हमारी जमात के अंदर, अभी देखो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने लोग आ गए हमारी जमात में। वो क्यों आते हैं? अब लोग रूहानी डेवलपमेंट चाहते हैं, ईमान का डेवलपमेंट चाहते हैं, हक और सच की डेवलपमेंट चाहते हैं लोग। इसलिए हम मुतमईन हैं कि हमारी जमात के अंदर न कंस्पिरेसी है न हिपोक्रेसी है, और हमारी जमात ने हमेशा वर्कर को इज्जत दिया है, और इसको हम इबादत समझ के खिदमत खल्क़ खुदा के अंदर जो अजर और जो सवाब है वो और किसी चीज़ में नहीं है। इसको हम इबादत समझ के इस वक्त हम मैदान में आए हैं। इसको किसी गरीब की इस सोसाइटी के अंदर कोई लाचार, कोई मजलूम, कोई ऐसा भी हो, सबसे पहले इंसानियत हमारा वो स्लोगन है। तो इंशाअल्लाह तो आप तब्दीली देखेंगे इस हल्के के अंदर। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे कारकुन हैं, मेरी आवाम है इस कंस्टिट्यूएंसी 3 के अंदर, ये बहुत बड़ी बाशूर वो पब्लिक है। इसके अंदर देखो कितने लिटरेसी रेट हमारे पास है, बड़े सिविलाइज एक तहजीब है पूरी इस हल्के के अंदर, बहुत बड़ी तहजीब है। अब देखो आरामोश के अंदर एक तहजीब है, बगरोड के अंदर देखो एक तहजीब है, दनियोर के अंदर देखो एक तहजीब है, एक सिविलाइज सोसाइटी है। ये सब जानती है पब्लिक। अभी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कितना क्रेडिबल हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे ज़्यादा मेरी पब्लिक क्रेडिबल है। क्रेडिबिलिटी रखने वाले लोग नीचे सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं लोग। अब मैं अपने आप को क्रेडिबल समझ के फिर पब्लिक को मैं इग्नोर करूं? नो वे। और न वो कोई मुझे इस तरह एक्नॉलेज करेगा, तस्लीम करेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त लोग रूहानी डेवलपमेंट चाहते हैं। ये मेरा रहबर ने ये उसके उस खून नाहक के सदक़े में हमें ये मिला, ये जुरात हमें मिली है कि जाके जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की हिमायत में हुकूक की जंग लड़ना, अच्छा मज़लूम की हिमायत करना, ये मेरे रहबर ने मुझे अता करके चले गए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ, मैं पूरी उम्मीद हूँ इन इंतखाबात में जिस तरह हमने 94 में फिर 2005 में हमने इलेक्शन विन किया, और उसके बाद भी जो कैंडिडेट के पास जो वोटर सपोर्टर है ना, 1-2 कैंडिडेट ऐसी हैं हल्के में जिनके तमाम वोटर सपोर्टर आईटीपी के ही है, लेकिन कैंडिडेट ने रंग बदला, सपोर्टर ने रंग नहीं बदला है। कारकुन और सपोर्टर का थ्योरी, उसका नजरिया उस कैंडिडेट की तरफ अभी भी कोई ऐसा वफाकी जमात का समझ के उसको वोट पोल नहीं कर रहे हैं। उसको उस एंगल से देख रहे हैं कि वो जो पहले जिस जमात में था ना आईटीपी में, यही 2-3 कैंडिडेट हमारे पास इस वक्त सेटिंग पोजीशन में हैं, उनके पास भी इसी आईटीपी के सदक़े में इनकी इंट्रोडक्शन हो गई। तहरीक जाफरिया के सदक़े में ये लोग किसी पोजीशन पे आए थे, और आज जाके वफाकी जमातों के गोद में जाके ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन विन करेंगे, हमारे पास इतने सपोर्टर हैं, इतने वोटर हैं। लेकिन वो वोटर भी टीजेपी के थे, आईटीपी के थे, और रिलीजियस माइंड रखने वाले लोग थे। यानी इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा, वैसे ये लास्ट में बात करूंगा। देखो ये जो रिलीजियस सेक्टर हमारा है, ये सबसे बड़ा सोशल सेक्टर ही यही है। अब देखो हाल ही में एक छोटा सा मिसाल दे दूंगा। जमात इस्लामी का सेनेटर जो मुश्ताक साहब थे, मजलूम फलस्तीनियों के लिए देखो दूसरी दफा जाकर अरेस्ट हो रहे हैं। वो ये इसको बर्डन नहीं समझे लोग। अब फर्ज करो मुश्ताक ने आईटीपी का टिकट लेके मैदान में उतरा हो ना, अगर आईटीपी का टिकट मेरे पास ना हो तब भी तो मुश्ताक यानी एक शिया हूं। कल अगर फर्ज करो टिकट मुझे मिलता है तो क्या मेरे अंदर एक्सट्रीमिज्म आएगी? क्या मैं इस सोसाइटी के अंदर क्या किसी के हुकूक को मैं सलब करूं? नहीं, चांस ही नहीं है वो। ये नहीं हो सकता है। और ये भी बताऊंगा कि इस जमात के अंदर किसी को पाबंदी भी नहीं है। हमने दावत भी दी थी, इससे कोई भी सेक्ट के जो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो आके आईटीपी का टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्राइट विजन रखने वाली एक जमात है। हाँ सेक्टेरियन है, सेक्टेरियन होना कोई एक्सट्रीमिस्ट और सेक्टेरियन को इसको आप इसमें डिफरेंस करें, ठीक है ना। एक बंदे ने उस दिन एक उम्मीदवार ने कहा था कि भाई वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा था। नहीं,
इंतहा पसंद वो बंदा होता है जो भूखा होता है, ठीक है ना, इक़्तिदार का भूखा होता है, वो इंतहा पसंद होता है। हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हम इक़्तिदार के भूखे हैं। हम इस सोसाइटी के अंदर किसी की मदद करके खुश होने के लिए हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हम कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इसलिए आज़ादी है इस जमात के अंदर। ये सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम एक लास्ट में एक सवाल ले लेंगे आपसे टाइम के हिसाब से। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, जैसा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात किया, जो यहाँ की लीगल स्टेटस है उसके ऊपर बात किया, तो इस आपके ख्याल में आप GB के अहम इश्यूज़ कौन से हैं और उनका वे आउट क्या है, एक मैसेज की शक्ल में आप बताइएगा। सबसे पहले हमारे लिए जो मेन इश्यूज़ है ना, मैंने जो स्टडी किया हमारे PC4 है। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेरोजगारी के ऊपर मैंने बात करनी है। मैंने इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखो, बल्तिस्तान जैसा बहुत बड़ा रीजन के अंदर बिजली 24 घंटे में 2 घंटे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गिलगित जो कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान की, इसके अंदर 2 घंटे बिजली। अब आकर लोग कहेंगे कि भाई हम बिजली दे देंगे, अब कोई बिजली नहीं दे सकता है। अब आके उसका 5 साल पूरा गुजरेगा, बिजली घर बनवाएगा, उसका रन होने तक 5 साल पूरा गुजर जाएगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भाई उन वफाकी जमातों से मेरा गिला भी है और उनके सपोर्टरों को मेरा ये पैगाम भी है। पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत वाले अगर चाहते तो सर्दियों में हमारे लिए जो 8 मेगावाट, इससे प्रीवियस देखो 3 साल 4 साल 5 साल पहले क्या होता था, यहाँ थर्मल वो जो बिजली घर थे हमारे, जनरेटर थे वहां, उनके लिए तेल आता था ना। इस दफा तेल क्यों नहीं दिया? ये 2-3 सालों से मैं नून लीग के उन मोहतरम वर्करों से मेरा सवाल है कि भाई अपने कायदीन से पूछो, 11 अरब दे के तुम्हारा वजीर आला पंजाब का जो मिसेस हमारी मोहतरमा अपने लिए जहाज खरीद सकती है, उस 11 अरब में से अगर तुम्हारे लिए 1 अरब रुपए भी देती तो सर्दियों में यहाँ तुझे बिजली 6 घंटे मिलती। उससे सवाल करो, तुम KPK वालों से ही सवाल करो, जाके वो पीपल्स पार्टी वाले के जो वजीर आला है हमारे सिंध के, उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो कि भाई मैं तो इधर अंधेरे में हूँ, तुम्हारे पास इतना बहुत बड़ा बजट है कि भाई आप लोग अपने पैसे बाहर फेंकने से उधर से कोई 1 अरब 2 अरब रुपए आप गिलगित बल्तिस्तान में डीजल के लिए दे दो, ताकि यहाँ से वो अंधेरा खत्म होगा। और ये मेरा मैसेज है कि इस इलेक्शन में आप लोगों ने अपने अंधेरों को मद्देनजर रखना है, अपनी नौकरियों को मद्देनजर रखना है, तुम्हारे जो PC4 वहां पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको मद्देनजर रखना है, और आपने फिर आने वाले 5 सालों का सोचना है कि आप लोगों ने फिर अंधेरे में ही रहना है। इसलिए इसके लिए क्विक एक्शन करने के लिए एक प्लान की जरूरत है। लिहाजा अपने वोट को इन बेहरूपियों के दोखों में आके, जो 25 साल से हम लोगों ने ज़ाय किया, 78 साल तो हमारे इस कंट्रोवर्सी में गए कि भाई गिलगित बाल्टिस्तान डिस्प्यूटेड है। हम कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, इस बात को भी क्लियर करूंगा। हम परफेक्ट पाकिस्तानी हैं, ईमानदार पाकिस्तानी हैं, सर्टिफाइड पाकिस्तानी हैं। हमारा आबा अजदाद ने लिख के दिया है, हम पाकिस्तानी थे, हैं और हम पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जो सुतैली माँ वाला सुलूक करते हैं ना, वो हमारे यहाँ के इलेक्टेबल जो हमारे उम्मीदवारान थे, उन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से उधर से आने वाला आकाओं को खुश करवाने के लिए उन लोगों ने क्या कहा, सब ठीक है, सब ठीक है। हमें जलील जो किया ना, इन लोगों ने किया। इसलिए अब की बार जो वोट पोल करेंगे आप लोगों ने, अपनी प्रीवियस 5 साल महरूमियों को मद्देनजर रखो, और आने वाला जो फ्यूचर है 5 साल, उसमें क्या होगा तुम्हारे साथ जो माजी में हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए वोट आप लोगों ने इस बुनियाद पर डालना है। बस ये मेरा मैसेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। नाजरीन, यकीनन अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम इस प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कशन चलती रहेगी। लास्ट में इस मैसेज के साथ, यकीनन जो वोट जो है वो आपकी अमानत है। आपने सोच समझ के अच्छी जो क्रेडिबल जो पर्सनालिटीज़ हैं, या जो आप समझते हैं अहल, ईमानदार और कम्पिटेंट बंदों को जो है वो हमें वोट देना चाहिए। साल में आपको 5 साल के बाद आपको एक पब्लिक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आवाम अपनी ताकत का मुस्बित और बेहतर इस्तेमाल करें। अपना जो जमहूरी प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेके जो है वो अपना मुस्तकबिल का फैसला करें। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।